ہمارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال گل سے کلام پیدا کر۔ ناظرین صبح بخیر، دوردرشن کے سری نگر اسٹوڈیو سے ہم لے کر ہیں آپ کا من پسند بریک فاسٹ شو جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے۔ آپ سبھی کو ہمارا پیار، خلوص اور محبت و مرا آداب، السلام علیکم اور خوش آمدید۔ ہر روز ہر صبح ہم اس پروگرام کو لے کر آتے ہیں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ آج کے دن بھی یہی دعا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں خوشحال رہے، صحت مند رہے اور تندرست رہے۔ ایک نیا دن، ایک نئی صبح اللہ تعالیٰ کرے کہ اس نئے دن کی نئی صبح آپ کی زندگی میں ایک نیا بہار لے آئے اور آج کا دن بھی ہر روز کی طرح آپ کے لیے نوید مسرت لے کر آئے۔ آج کی صبح میں رہوں گا آپ کے ساتھ ماجد الخیر نندا، اور اس پروگرام میں میرے شریک دوست، میرے استاد اور میرے بڑے بھائی ڈاکٹر میر جاوید صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ماجد آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، اور ناظرین کا بھی استقبال آپ نے کیا ماشاءاللہ، اور ان کو بتا دیں کہ آج جمعرات ہے 29 اگست 2024 مطابق 23 صفر المظفر 1446 ہجری، اور جنماشٹمی کے بعد موسم میں اچانک سے ایک بدلاو آ گیا۔ کشیر میں یہ بڑا مشہور کہ امہ دہ زرم ستم کے دہ گسان موسمس میں تبدیلی، اور آج ہم نے باضابطہ دیکھا، ہر سال دیکھتے ہیں، اب کی بار تھوڑا عیاں ہو گیا کیونکہ جو پنکھے اور اے سی رات کو چلتے تھے وہ یا تو دھیمے کر دیے گئے یا پھر بند بھی کر دیے گئے، اور دن میں بھی جو تمازت ہوتی ہے تھی پچھلے دنوں اس میں بھی تھوڑی سی کمی آئی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ موسم کی یہ تبدیلی ہم سب کے لیے، ہماری باغوں کے لیے، ہمارے کھیتوں کے لیے خوشحالی لے کے آئے، خوشیاں لے کے آئے، اور ہم سب کے لیے ترقی اور نوید مسرت لے کے آئے۔ آج 29 اگست ہے ماجد، اور 29 اگست کو قومی دن منایا جاتا ہے کھیلوں کا، نیشنل سپورٹس ڈے۔ 2012 سے اس کی شروعات ہوئی، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ دن جو ہے یہ دھیان چند جو تھے ہمارے، جن کو ہاکی کا ساحر، ہاکی کا جادوگر بھی کہا جاتا تھا، جو 1905 میں آج ہی کے دن جنمے تھے، اور 1928، 1932 اور 1936 میں انہوں نے اولمپک گولڈ میڈل حاصل کیا ملک کے لیے ہاکی میں، اور اس کے بعد جو ہے ان کے نام پہ ان کی جو کنٹریبیوشن ہے ان دا فیلڈ آف سپورٹس، اس کو یاد کرنے کے لیے یہ دن کا جو شروعات ہے، اس دن کی شروعات ہے 2012 میں ہوئی، اور ہر سال ایک نئے تھیم کے ساتھ، ایک نئے مقصد کے ساتھ، تاکہ سپورٹس کو جو ہے وہ فروغ ملے۔ سپورٹس اب وہ پرانا یہ وہ مشغلہ نہیں رہا یا وہ ویسٹیج آف ٹائم نہیں رہا، اب باضابطہ سپورٹس ایک کریئر ہے۔ سپورٹس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر کھیلتے نہیں ہیں بٹ وہ سپورٹس کے ساتھ اب بھی وابستہ ہیں۔ آپ ایک کامنٹیٹر کی حیثیت سے، ایک کالمنسٹ کی حیثیت سے، ایک اکیڈمی چلا سکتے، مطلب کچھ بھی آج کے دور میں، آج کے جو وقت ہے ابھی کا، وہ سپورٹس کے لیے انارمس اپارچونیٹیز ملتی ہیں ہر ایک بندے کو جو کھیل کود میں دلچسپی رکھتا ہے۔ بالکل، بہت امپورٹنٹ دن ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جسمانی قوت ہی ذہنی قوت کی ضامن ہوتی ہے، اور میں اکثر اپنے ناظرین کے ساتھ، میں نے کئی بار یہ ایک پروورب سا ہے، اردو میں ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جو ہم بچوں کو کہتے تھے پہلے کہ کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، لیکن اب یہ تھاٹ بھی چینج ہوا ہے، اب بچوں کو بولتے ہیں پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے بنو گے لاجواب۔ تو اور یہ ظاہر بھی ہیں، جیسے آپ نے بولا کہ میجر دھیان چند واز بورن ان 1905، آج بھی انہوں نے اپنا نام روشن ہے، آج بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں اور یہ دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور وجہ جب اس کی دیکھتے ہیں یہی ہے کہ انہوں نے جو کھیل کود میں اور بالخصوص ہاکی میں جو اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے وہ رہتی دنیا تک ان کا جو نام ہے قائم ہے، زندہ ہے، اور محض یہ کھیل کود ہماری فزیکل فٹنس کو نہیں بڑھاتی ہے ڈاکٹر صاحب، میں مانتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو لیڈرشپ ہے، ہمارے اندر ڈسپلن ہے، ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر ذمہ داری ہے، ہمارے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اندر آ جاتی ہے، اور راشٹریہ کھیل دیوس، نیشنل سپورٹس دیوس ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے اس لحاظ سے، کیونکہ آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ سپورٹس کا جو انڈسٹری ہے، سپورٹس کا جو کلچر ہے آل ٹوگیدر شفٹ ہوا ہے۔ آج بھی حال ہی میں جیسے پیرس اولمپکس میں ملک میں تقریباً 6 میڈلز جیتے، اور دا ٹرینڈ ہیز چینج، آئے روز اب پیرا اولمپکس بھی کھیلے جا رہے ہیں، اور آج ان کی باضابطہ شروعات ہے، آج 29 اگست ہے تو آج اس کی باضابطہ شروعات ہے پیرا اولمپکس کی، اور پیرا اولمپکس میں
उनके लिए जो लोग स्पोर्ट्स में जो जिस्मानी तौर थोड़े से चैलेंजिंग है, उनके लिए भी ओलंपिक्स जो है उनका इनकाद होता है। और पेरिस में आज से जो है शुरुआत हो रही है पैरा ओलंपिक्स की। और माजिद, आज के दिन के साथ एक मैं कहूँगा एक बिल्कुल एक क्या कहें, कोइंसिडेंस है, बिल्कुल इत्तेफाक है कि कल जो है अनाउंसमेंट हो गई कि कश्मीर में 40 सालों के बाद जो है बैनुल अक़वामी क्रिकेट लौट के आ रही है। मिड 80s में यहाँ इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वेस्ट इंडीज मैच खेले गए थे, आप तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। और अब जो है लेजेंड्स लीग जो है वो अब खेली जा रही है और उसके 10 मैचेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में खेले जाएंगे। 4 मैच जम्मू में 6 अक्टूबर से और 6 मैच जो हैं बशमूल फाइनल मैच, बिल्कुल वो यहाँ हमारे इसमें बख्शी स्टेडियम में खेला जाएगा। और बख्शी स्टेडियम में गालिबन पहली बार क्रिकेट खेला जा रहा है। आईसीसी के जो पिच क्यूरेटर्स वगैरह हैं वो वारिद कश्मीर हुए हैं, जिन्होंने उस पिच का जिम्मा लिया है कि उसको इंटरनेशनल क्रिकेट के लायक बनाया जाएगा। और जो क्रिकेट के शौकीन नौजवान हैं उनको उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल क्रिकेटर्स खेलेंगे जिनमें बड़े बड़े नाम हैं। हमारे हरभजन सिंह हैं, इरफान पठान हैं, वो जो लंबे छक्के मारते हैं उनका क्या नाम है, क्रिस गेल है, फिंच आ रहे हैं, मतलब बहुत इंटरनेशनल जो भी रेप्यूटेड प्लेयर्स वो आ रहे हैं। एक वेस्ट इंडीज का एक प्लेयर मुझे याद आ रहा है, डैरेन सैमी शायद, वो भी आ रहे हैं। और मतलब काफी बड़े बड़े नाम हैं जो क्रिकेट खेलने के लिए कश्मीर आएंगे। और इससे यहाँ की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है उनको भी बढ़ावा मिलेगा, यहाँ के सयाहत को भी बढ़ावा मिलेगा और खेल शायकीन के लिए ऐसे लेजेंड्स को देखने का, सामने से देखने का एक मौका मिलेगा। बिल्कुल। और एक बात, जैसे हम आज दिन की बात कर रहे थे, आज ही के दिन जो अच्छे एथलीट्स होते हैं, अच्छे खिलाड़ी होते हैं, उनकी नामजदगी होती है, उनको नॉमिनेट किया जाता है कि किस किस को खेल रत्न मिलने वाला है, किस किस को स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, जिनको अर्जुन अवार्ड्स और खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा, और उनके नाम भी आज ही आम किए जाते हैं। इसके साथ साथ हम आप तक पहुंचाते हैं मौसम के, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मौसम में एक तब्दीली आई है। आज जो महकमा मौसमियात से दर्जा हरारत के हवाले से जो पेशन गोई है, श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेल्सियस और कल रात का कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेल्सियस और कल रात का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आज भी कहीं कहीं पे हल्की फुल्की बारिशें होने के इम्कानात हैं। और सोनमर्ग के अपर एरियाज में कल पहली बर्फ भी हुई। इसी के साथ हम आपको हाईवेज की अपडेट्स दे देंगे। आज कौमी शाहरा श्रीनगर जम्मू हाईवे पर छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत होगी। श्रीनगर सोनमर्ग रोड पर आज छोटी बड़ी गाड़ियों के लिए एक टाइमिंग इजरा की गई है। 6 से 11:30 तक गाड़ियों को मीना मार्ग से श्रीनगर के लिए रवाना किया जाएगा। वहीं दिन के 1:30 बजे से शाम 7 बजे तक गाड़ियों को सोनमर्ग से करगिल चलने की इजाजत होगी। इसी के साथ साथ मुगल रोड पर छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत होगी। मजीद अगर आप सफर का इरादा रखते हैं, आपके जो टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, या आप इन पर राबिता करें, या जो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट है उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपडेट चेक करके ही सफर के लिए रवाना हो। बहुत शुक्रिया माजिद इस अहम जानकारी के लिए। नाजरीन को इंतजार रहता है इस चीज़ का, और नाजरीन को यह भी इंतजार रहता है कि गुड मॉर्निंग जैन की प्रोग्राम जब शुरू होगा तो नगमा कौन सा सुनाया जाएगा, क्योंकि नगमा तो इस प्रोग्राम की एक लाजिम मलजूम चीज़ है। और आपको इशारतन ये भी बता देंगे कि आज एक नहीं 2 नगमे सुनेंगे आप। एक नगमा हम आपको अभी सुनाएंगे, एक बाद में सुनाएंगे। वो नगमा कौन आपको सुनाएगा, आपके पास आपके सामने वो पेश करेगा, वो हम थोड़ा सा तजस्सुस बनाए रखेंगे। अभी तो फिलहाल जो हमने आज इंतखाब किया है नगमे का, वो कश्मीर के एक मायानाज सिंगर हैं, कंपोजर हैं, असदुल्ला यत्तू, जिन्हें हम असद अंजुम के नाम से जानते हैं। नहायत ही खुश लहन आवाज़ है इनकी, और इन्हीं का गाया हुआ ये खूबसूरत नगमा आया चाहता है, जिससे हम शुरुआत करेंगे गुड मॉर्निंग जैन की। आप देखते रहिए हमारा ब्रेकफास्ट शो, और नगमे के उस पार जब हम आएंगे तो आपकी मुलाकात आज के खास मेहमान से कराएंगे।
اگر بہار دل منئی جگر سٹا وچھاں اگر بہار دل منئی جگر سٹا وچھاں اسن مشی یکن نظر تل ودا وچھاں اگر بہار دل ونئی نصف شبن ہمار ہو تار ہے دلس بچھی نصف شبن ہمار ہو تار ہے دلس بچھی دیوار باس نئی ہوا کچھن نظر وچھاں دیوار باس نئی ہوا کچھن نظر وچھاں اگر بہار دل ونئی کفن بنی میں کم ہوا دفن کریم سہی وچھا کفن بنی میں کم ہوا دفن کریم سہی وچھا ستم گرو پن دفن کرو وچھاں ستم گرو ہوس پن دفن کرو وچھاں اگر بہار دل ونئی کیا ونئی اندھی نکن غمن سٹو جگر کیا ونئی اندھی نکن غمن سٹو جگر مچھل شو اور کھٹی ہوا وچھاں مچھل شو اور کھٹی ہوا وچھاں اگر بہار دل ونئی
Удачи чешим мянюшт мян дастан пар. Удачи чешим мянюшт мян дастан пар. Fayaz aşi bariş gazal para uça uça. Fayaz aşi bariş gazal para uça uça. Asum maşi mekun nazar tula wada uça uça. Agar bahar dil banai jigar sata uça uça. Agar bahar dil banai jigar sata uça uça. Agar bahar dil banai. नाज़रीन वेलकम बैक। उम्मीद है आपको ये नगमा पसंद आया होगा। नाज़रीन, जैसे हम आगाज़ में बात कर रहे थे कि स्पोर्ट्स का जो कल्चर है वो बिल्कुल तब्दील हुआ है। इसी हवाले से जब इसी के साथ साथ जब बात करेंगे तालीम के हवाले से, जब हम बात करेंगे जो पढ़ने और पढ़ाने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल तब्दील हो चुका है। आज की जो पेडागोजी है वो भी अब नई, मॉडर्न और अपडेटेड आ रही है। इसी हवाले से आज हमने ख़ास मेहमान को मदऊ कराया। उस दिलचस्प मेहमान से जो गुफ्तगू है वो जारी रखें, जो वो आपसे मुलाकात ज़रूर कराएंगे। लेकिन प्रोग्राम में रुकते इख्तिजाती वक्फे के लिए, वक्फे के उस पर आपकी आज के मेहमान के साथ मुलाकात। देखते रहे गुड मॉर्निंग JNK। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। और अभी ये माजिद जो कह रहे थे स्पोर्ट्स के हवाले से या तालीम के हवाले से, मुझे याद आया एक सबक, जिन दिनों मैं शायद 6ठी, 7वीं या 8वीं में पढ़ रहा था। तो एक सबक था हमारा, उसका नाम था कोपनहेगन, डेनमार्क का सफ़र। तो उस डेनमार्क के सफ़र में एक लाइन लिखी हुई थी कि वहाँ एक काला पत्थर है। उस काले पत्थर को अगर कोई चूमता है तो वो दोबारा डेनमार्क जरूर आ जाता है जिंदगी में। और कभी कभी इत्तेफाक जिंदगी के ऐसे हो जाते हैं कि आप अगर किसी के साथ मुलाकात करने के बाद अच्छा लगता है आपको, वो उनके साथ बात करके, उनके साथ मुलाकात करके, फिर आप हमेशा दुआ करते हैं कि वो ज़िंदगी में कभी दोबारा मिले और उनके साथ और बातें हों, मज़ेदार बातें हों, अच्छी बातें हों। और वो मुलाकात अगर किसी टीचर के साथ हो जाए तो सोने पे सुहागा। मुझे अपने वालिद साहब बचपन में एक शेर सुनाते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उन दिनों मुझे उतना ज़्यादा समझ नहीं आता था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सा जब से शऊर थोड़ा सा बेदार हो गया कि उस्ताद को मनसब मिला कागज़ कलम तकदीर में, उस्ताद को मनसब मिला कागज़ कलम तकदीर में, चाक की नकदी मिली तख्ते सिया जागीर में। तख्ते सिया ब्लैक बोर्ड को हम बोलते हैं, और जो आजकल रहा नहीं, स्मार्ट क्लासेस ने उसकी जगह ले ली है। लेकिन तालीम का, पढ़ने का, पढ़ाने का जो सिलसिला है वो बिल्कुल वैसा ही है। और हमारे टीचर्स जो नई जो पौध है टीचर्स की, उनको तैयार करने के लिए, वो उनको ये सिखाने के लिए कि पढ़ाते कैसे हैं, इसके लिए एक मुनज़्ज़म निज़ाम है महकमे तालीम में। और आज हमारे साथ जो प्रोग्राम में तशरीफ़ आवर हुई हैं एक मेहमान, इनका नाम है अंजलि रैना जी। और अंजलि रैना जी पेशे से एक टीचर हैं
और टीचर BSc किए टीचर्स को पढ़ाती है, बच्चों को ज़्यादा नहीं पढ़ाती हैं, टीचर्स को पढ़ाती हैं। SCERT में स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग्स जो श्रीनगर है बेबना में, वहाँ पे अभी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं और टीचर्स की बड़ी हर दिल अजीज़ बन गई हैं। उसकी वजह हम थोड़ी सी जानते हैं क्योंकि इनके साथ पहले प्रोग्राम में एक बार बात हुई है और जो बातें तब रह गई थी वो आज करेंगे इनके साथ। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हम करते हैं, खुशामदीद, वेलकम और आपका स्वागत है प्रोग्राम में। नमस्कार। बिल्कुल वो खूबसूरत कश्मीरी अटायर में डिजोहर्त अठोर है टीचर है ना, डिजोहर्त अठोर, तो वो पहन के आप आई हैं। बिल्कुल सकशर बट कोर यजन आसान खानदर करित पत यमन चीजन हुंद यजन ये बनाव सिंगार छु। तो आपका इस्तकबाल करते हैं हम प्रोग्राम में। एक बार और सुनेंगे, हालांकि पिछली बार हमने आपसे आपकी जो जन्म वगैरह जो आपका हुआ उसके बारे में हमने पूछा, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि हमारे नाजरीन में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, नए लोग देख रहे हैं प्रोग्राम, तो थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ पैदाइश हुई, पढ़ाई लिखाई का क्या सिलसिला रहा, और अभी जो प्रोग्राम से पहले आप बोल रहे थे वो ज़बरदस्त वाली बात, तो वो वाली बात भी अपने तारुफ में बता दीजिए। सर मैं एक्चुअली मेरा बर्थ प्लेस जो है वो मुझे प्राउड भी फील हो रहा है कि मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, बिचस कशिर। तो मेरा जो बर्थ प्लेस है वो करालिया रहनावारी है। अच्छा। तो उसके बाद मेरी पढ़ाई भी विश्व भारती हायर सेकेंडरी में ही हुई। 5वीं कक्षा तक मैंने वहां अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसके बाद कुछ कारण रहे और मेरी पढ़ाई बाहर जारी रही। तो पढ़ते पढ़ते आगे निकल गए और उसके बाद बहुत अच्छी चीज ये रही कि कल्चर थो पनुन जिंद इतकन तक वनु अटहोर ते डेजोर तो मैं उन गॉड थी विच इज प्राउड कश्मीरी कश्मीर जबान सर अनफत ज्यादा तो पढ़ावा दो थोड़ा पढ़े तो कर अपनी इंटरेस्ट थे तो ऊपर वाले का शुक्र है, ईश्वर का कृपा उनकी रही, यहाँ तक आज पहुंचे हैं। बड़ी अच्छी बात। और रहनावारी का आपने जिक्र किया, बड़ा खूबसूरत इलाका, एक तरफ से डल बेक तरफ दरगाह, बेक तरफ मतलब ये बड़ा सही मोरमुंद इलाका तो वारियान महलन पे। तो आपने जो कहा कि करालियार है, तो करालियार के साथ आपका ताल्लुक रहा। और जो पढ़ाई का सिलसिला रहा, पहले आपने यहाँ कश्मीर में पढ़ाई की, तंपत गई वो तो नबर वहाँ से पढ़ाई की, तो क्या पढ़ा आपने और टीचर ही क्यों बने, थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहेंगे? जरूर सर। सर मैंने अपना पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट किया BSc। उसके बाद मेरा रुझान रहा लैंग्वेजेस की तरफ, तो मेरे को MA इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश। हाँ, तो बट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री भी रहा। अच्छा। तो सोचा कि वहीं क्या कर भी। तो MSc केमिस्ट्री में जब एंट्रेंस हुआ तो मेरा सिलेक्शन हुआ, आई वॉज वेरी हैप्पी। तो मैंने कंटिन्यू किया फॉर दैट ऑल्सो। उसके बाद सोचा कि सर ये सोना मैनेजरियल स्किल्स गसन आसन, यू शुड नो हाउ टू टॉक, यू शुड नो हाउ टू प्रेजेंट एंड ऑल। तो मैंने MBA में भी एडमिशन ले ली। आई डिड माई मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट और स्पेशलाइजेशन मेरा HR ही रहा, जो कि मुझे इच्छा भी थी। मैं उस मंत करान आत्मजगत। उसके बाद फिर आगे भी पढ़ाई चलती रही। मैंने कुछ डिप्लोमास भी ले लिए और कुछ ट्रेनिंग्स भी ले ली खुद से, सो दैट कि मैं कल को अगर किसी फील्ड में जाऊं तो आई रियली वांटेड टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरीली डिफरेंट। और तब तो सोचा नहीं था टीचर बनने का, बट जो एक था कि कुछ अलग करना है। एंड आगे पीछे देखते देखते जब मैंने अपने टीचर्स को भी देखा, मैं इस पोडियम से अपने टीचर्स को भी थैंक यू कहूंगी जिनसे मैंने अपनी शुरू की पढ़ाई शुरू की। हम सब थैंक यू बोल रहे हैं टीचर। हाँ, मैं उनको जरूर थैंक यू कहूंगी सर, क्योंकि मेरे वो बिगनर्स जो थे, जो बिगनिंग का कुछ टाइम रहा प्लीज में टाइम तक बेहतरीन टीचर थे। बहक में शुक्रिया कितने कर बाद आई डोंट हैव वर्ड्स। तो इस पोडियम में आज मुझे मौका मिला है, मैं उनको थैंक यू टीचर्स कह रही हूँ। आज ये तो छस तीन दिस कि मैं आई सो फीलिंग था कि नो, इफ आई रियली वांट टू कंट्रीब्यूट, आई रियली वांट टू मेक समथिंग डिफरेंट इन द सोसाइटी, तो आई नीड टू बी अ टीचर। तो उस टाइम मुझे दिमाग में आ गया नाई जो कौम को बनाते हैं, कहते हैं कि रहबर भी ये, हमदम भी ये, गमखार हमारे। रहबर भी ये, हमदम भी ये, गमखार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं, मेमार हमारे। तो ये बिल्कुल कौम बनाते हैं। आई थिंक जो आपने बात करी कि 3 मास्टर्स किए, जो ये इंटरेस्ट फ्लक्चुएट हुआ कि पहले ये करना है, कहीं ना कहीं आप
آپ کے اندر اتنی کیپیسٹیز بھی آئی ہیں کہ آپ ٹیچرز کو پڑھاتے ہیں. کیسا یہ چیلنجنگ تھا یہ سفر کہ ایک ماسٹرز کے بعد دوسرا ماسٹرز, پھر کئی سارے ڈپلوماز بھی کریں, کیونکہ آج کل بچے ایک ڈگری کرنے کے بعد کافی پریشان ہوتے ہیں کہ بس اب شاید میرا کیریئر اپرچونیٹیز نہیں ہے, میں نے جو پڑھا ہے شاید اس کی ریلیونس نہیں ہے. تو کس طریقے سے آپ نے نیویگیٹ کرا اس کو؟ انفیکٹ جہاں تک انگلش کی بات ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ کہاں چیز سے انبورن. مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں انگریزی تو ٹھیک ٹھاک بول ہی لیتی ہوں, مجھے گیس میں سختی کی. تو اس میں جب میں چلی گئی تھوڑا لٹریچر تھوڑا مجھے ڈفرینٹ لگا, لیکن میرا انٹرسٹ کا تھا, آئی ڈیڈ اٹ. مگر اوپر اس میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ میں اس کیمسٹری سے تمہارا کنیکشن, ایکچولی آئی لوڈ مائی سائنس ٹیچر. تو اس وجہ سے I used to be taught by Madam Deepak Nagari and she was from Ranawari. She had a different knack of teaching. تو شاید میرے دل کو چھو گیا اور مجھے وہ کیمسٹری بڑا اچھا لگتا تھا. تو پھر میں نے آپ نہیں کریں گے آج کی ڈیٹ میں مجھے لگتا ہے شاید کیمسٹری میں بھول بھی گئی ہوں کہیں کہیں, کیونکہ اب میرا ٹچ جو ہے لینگویجز کے ساتھ زیادہ ہے. بٹ یہ سفر بہت ہی اچھا رہا, اور جب اس کے بعد میں نے مینجمنٹ میں بھی اپنا ایڈمیشن لے لیا تو مجھے ایسا لگا کہ نہیں, یہ تو سارا کچھ ملا جلا ہی ہے, یہ سب کنیکٹڈ ہی ہے, انٹیگریٹڈ ہے. تو آپ کو کہیں کہیں پہ ان چیزوں کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی. آئی وش کہ میں نے کچھ کشمیری بھی سیکھی ہوتی ایز فار ایز دس لٹریری کانٹیکسٹ از کنسرنڈ. تو مجھے آج بہت خوشی بھی ہوتی ہے کہ یہ بکرشس میں ویسے تعاون بڑی اچھی بات ہے. اور کچھ چیزیں انسان یہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اور اسٹیبلش کرنے کے لیے سیکھتا ہے. بعد میں آپ ٹیچر بنے, یہ پڑھنے کا سفر, پھر پڑھانے کا سفر, پھر پڑھانے والوں کو پڑھانے کا سفر, یہ ٹرانزیشنز رہی ہیں. لیکن ایک چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ کہ ایک چیز مستقل رہی, وہ یہ کہ پڑھائی کے ساتھ ہی رہی آپ, چاہے آپ نے خود پڑھا, چاہے بچوں کو پڑھایا, یا ابھی ٹیچرز کو آپ ٹریننگ دے رہی ہیں. اس منظرنامے کو ہم تھوڑا سا اور ٹٹولنے کی ہم کوشش کریں گے. پروگرام میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ یہ جو SCERT ہے کس ٹائپ کی ٹریننگز دی جا رہی ہیں ٹیچرز کو, اور کہیں ٹیچرز اوور برڈن تو نہیں ہو رہے ہیں. یہ جو ٹیکنالوجی کا بیجا استعمال ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے ٹیچرز ایسے ہیں جو ٹیک سیوی نہیں ہیں, جن کو بڑی دقتیں آ رہی ہیں. وہ پورٹلز بھرتے ہوئے یا باقی ساری جو ٹریننگ کے ماڈیولز وغیرہ آپ آن لائن رکھتے ہیں ان کے لیے. تو اس چیز پہ ہم تھوڑی سی مفصل بات کریں گے. ابھی ہم کو ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکنا پڑے گا یہاں پہ. آپ کی اجازت سے ہم اس وقفے کے لیے رکیں گے. وقفے کے اس پار آئیں گے ناظرین تو آپ تک پہنچائیں گے آج کے اخبارات کی سرخیاں. اور آج کی جو ہماری مہمان ہیں انجلی رینا جی, جو ایک انسٹرکٹر ہیں, ایک ٹیچر ہیں بیسکلی, اور ابھی SCERT سری نگر میں بحیثیت ایک انسٹرکٹر کے ٹریننگز دے رہی ہیں ٹیچرز کو. ان کے ساتھ سلسلہ کلام جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ بریکفاسٹ شو گڈ مارننگ جن کے. کشمیر ایک نام, ایک احساس, جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے, اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بنا. کیا آپ شوگر, کولیسٹرول اور قبض سے پریشان ہیں؟ آپ کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے ویدانت ہربل لے کر آیا ہے DC-99 پریمیم آیورویدک جوس. اپنے اور پریوار کی صحت کی بھرپور حفاظت کے لیے خاص کر ڈائبیٹک پیشنٹس استعمال کریں ویدانت کا DC-99 جوس. یہ جڑ سے روگ مٹائے اور آپ کی شوگر لیول کو ہر وقت کنٹرول میں رکھے گا. ویدانت DC-99 جوس وادی کے ہر یونانی اسٹور پہ دستیاب ہے. فور ٹریڈ انکوائری کال آن 7006949946. کشمیر ایک نام, ایک احساس, جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے, اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بنا. ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریکفاسٹ شو گڈ مارننگ جین کی. آج جو ہمارے مہمان ہیں انجلی رینا جی, جو کہ ایک ایجوکیشنسٹ ہے, ایک مینٹر ہیں. ہم ان سے بات کریں گے, سلسلے کلام جاری رکھیں گے, لیکن ابھی آپ تک پہلے اخبارات کی سرخیاں پہنچاتے ہیں. میرے پاس ایک اردو روزنامہ اس سے خبر ہے. اسمبلی انتخابات کا پہلا مرحلہ, کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل.
35 नामजदगियां रद्द, तो 244 दुरुस्त करार। उम्मीदवार 30 अगस्त तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। जी, तो ये तो कागजात की बात हुई। इलेक्शंस का अभी यहाँ पे चल रहा है, दौरा है, और इलेक्शंस के हवाले से ही एक खबर शाया हुई है आज के एक मकामी उर्दू रोजनामे में। शेख सुर्खी में लिखते हैं, असम्बली इंतखाबात 2024 सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों को हर तरफ की सहूलियात फराहम कर दी जाएंगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर की तरफ से तफसीलात का ऐलान। उम्मीदवारों को जलसे जुलूसों, मीटिंगों, लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल और झंडे और बैनर लगाने की इजाजत के लिए ऑनलाइन दरखास्तें देने की सहूलियात। जी, और एक अंग्रेजी रोजनामा, इससे खबर है ब्रॉडकास्टिंग बूस्ट, कैबिनेट ग्रीन लाइट्स टू 234 न्यू FM स्टेशंस इंक्लूडिंग 3 इन अनंतनाग। जी, एक उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी एक ज़ैली सुर्खी है, वादी में रात से जारी ताज़ा बारिशों के नतीजे में मौसम में खुशगवार तब्दीली। 31 अगस्त तक मौसलाधार बारिशों का इम्कान, कहीं कहीं हल्की बर्फबारी मुतवक्को, सैलाबी सूरत हाल, बादल फटने के वाक़यात और जमीन खिसकने का इंतबाह। 3 सितंबर तक मतला अबर आलूद, कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। मौसमियाती महकमा श्रीनगर। और एक अंग्रेजी रोजनामा है, इससे खबर है हज 2025 एज लिमिट फॉर कंपेनियंस एक्सटेंडेड टू 65 ईयर्स। इसी अखबार में बॉटम लाइन पर वी द पीपल के उन्वान से खबर छपी है, विद अप्रोचिंग असेंबली इलेक्शंस फॉलोड बाय पॉलिटिकल गवर्नमेंट, people expect resolution of their long pending issues and easy access to corridors of power in Jammu and Kashmir. जी, एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है, कोर्ट सेंटेंसेस डॉक्टर टू 2 years in jail, says using RTI application on someone else's name crime which affects general public. इसलिए लिहाजा होशियार रहे, अगर आप RTI कहीं पे एप्लीकेशन दायर कर रहे हैं तो अपने नाम से ही करें। और एक अंग्रेजी रोजनामा स्पोर्ट्स के हवाले से चंद सुर्खियां इसमें शाया हुई हैं। ओलंपिक्स शुड डेफिनेटली हैपन इन इंडिया, विल प्रमोट मेरिट इन स्पोर्ट्स, प्रेसिडेंट मुर्मू। इसी अखबार से स्पोर्ट्स के हवाले से और एक खबर, विल इंश्योर टेस्ट क्रिकेट रिमेन्स प्रायोरिटी एज इट फॉर्म्स बैकबोन ऑफ द गेम, ICC चेयरमैन जय शाह। जी, तो ये थी सुर्खियां आज के अखबारात से। और आज के हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान हैं अंजलि रैना जी, एजुकेशनिस्ट हैं और SCRT श्रीनगर में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। तो अंजलि जी, इस कारण कहा कि ये टेक्नोलॉजी तो बेस यूजन टीचर इस कारण वनस कहा टीचर उनके बीच में वो जो एक गैप है, उस गैप को हम पुश कर रहे हैं कि ताकि वो गैप भर जाए। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जहां से उनको, जैसे आप ट्रेनिंग्स की बात करते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इतने हज़ारों टीचर्स को ट्रेन भी किया जा सके, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, हालांकि नागुज़ीर है, हम इसके बगैर हम रह नहीं सकते अभी, लेकिन टीचर्स की प्रिपरेशन विज़ावी टेक्नोलॉजी कैसी लग रही है? बिकॉज यू हैव सीन इट फ्रॉम अ क्लोजर पर्सपेक्टिव नाउ। To be honest enough, this is a very interesting question. Ashtrabasan के आम लोगन, Ashtrabasan की टेक्नोलॉजी आओ तो तूफान आओ, Ashtrabasan टेक्नोलॉजी आओ तो तूफान आओ ने कहीं contrary to that वारिया असल दा। तो है कि सोचित कि ये जो आज हाल अगर इस आज सज्जे वाले ब्रोट पकड़ तम वक्त क्या है सो ये एक अच्छा प्रिपरेटरी फेज है। अगर आपको याद होगा, मैंने लास्ट टाइम भी यही कहा था कि ऐसा तूफान आओ, कोविड कोरित कहीं मगर अगर इस विच इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऑल्सो द वे दैट वी लर्न टेक्नोलॉजी। ऐसे हो ची मोबाइल चलाऊं, ऐसे हो ची लैपटॉप चलाऊं, या खोसान और मैं बच्चों को भी यही कहती हूँ और टीचर्स को भी कि या खोसान एस पे जरूर ट्राई करो, अनलेस एंड अंटिल वी ट्राई इट एस तर में फिक्री कि ये खोसन सा अपोज क्यों ये ओसपोज। तो टेक्नोलॉजी ये बासान इट्स अ ब्लूम क्या ये इस सजी वरी ब्रोट पकन शुड नेक्स्ट जनरेशंस विल दे अप्रिशिएट इट क्या तिम रोजन इसके पठे प्रिपेयर, पेरेंट्स आर प्रिपेयर्ड, द नेक्स्ट जनरेशन वुड कम, दे विल प्रिपेयर देम अकॉर्डिंगली। तो ये चीजें चलती जाएंगी, ठीक है, ये पैकी एज अ धरोहर पैकी ब्रोट कुन एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये मे बासान आज वारिया लोग यम अनटच्ड टेक्नोलॉजी से, मगर 90% तिम टेक्नोलॉजी से बिल्कुल वाबस्त। यू विल सी कि ये परिमित
Tinti karna koşiş ki aslında. Yes. अब जैसे हम आपके इदारे की बात कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग देते हैं टीचर्स को, चूंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इसी हवाले से वो भी आया और इस इदारे का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो आपका जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, ब्रॉडर इस तो विजन क्या शुदा इस आप इदारस क्या शुदा हमारा देखिए जो SCERT है ये बेसिकली है रिसर्च के साथ, और ये वो वाला रिसर्च भी नहीं है जो हम सोचेंगे कि हम बहुत बड़ी चीजें साइंटिस्ट की तरह करें. नो, इट्स एन एक्शन रिसर्च. इमीडिएट एक्शन है, इमीडिएट फॉलो अप है. बेमारस वुचुन अमिस क्या दलील छ इतने जो डायग्नोसिस त इतने चम सिम्टम्स रीड करने तो इतने जो क्विक एक्शन त इट्स नॉट के स्ट्राउनी प्रोलॉन्ग दहन वेरिएंट करो रिसर्च पतो छो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका. एक्शन ओरिएंटेड यू हैव यस इट्स एक्शन ओरिएंटेड. और आत्मश्रीति गसान की ये छोटे छोटे रिसर्च भी इसमें होते हैं, ठीक है, जो इमीडिएट एक्शन डिमांड करते हैं. तो यहाँ पे ये होता है. और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, इस इदारे की बात करते हैं, तो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस. द प्रैक्टिशनर शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट व्हाट मेडिसिन, हाउ, व्हेन एंड व्हाट शुड बी द लिमिट ऑफ इट टू बी गिवन टू. इशू सो चीज के इसीलिए ये इदारा जो है, ये इदारा बहुत इस चीज में काम कर रहा है और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इसका पार्ट हूँ. बड़ी अच्छी बात. और अंजलि जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चूंकि ये ट्रेनिंग्स के साथ, रिसर्च के साथ वाबस्ता है SCERT, तो अभी चूंकि आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया और बड़े फखरी अंदाज में आपने कहा कि 90% जो आपकी नज़रों में, आपके मुशाहिदे में है, 90% से ज़ायद इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छी तरह से कर रहे हैं. तो ये जो ट्रेनिंग्स हैं, ये जो मॉड्यूल्स हैं, क्या कोई ऐसा निज़ाम वहाँ पे वज़ा किया गया है या हो रहा है, या आप उस पर गौर कर रहे हैं कि ये जो ट्रेनिंग्स हैं, ये ट्रेनिंग्स ऑनलाइन दी जाएं ताकि एक जो ब्रॉडर सेक्शन ऑफ टीचर्स है वो इसके साथ इन्वॉल्व हों और रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स हो. ट्रेनिंग इज फॉर द सेक ऑफ ट्रेनिंग यील्ड नथिंग. अगर ट्रेनिंग्स हम सीखने के लिए, सिखाने के लिए करें और बाद में उसको परखें कि अगर हमने 40 या 50 टीचर्स को ट्रेनिंग्स दी, फिर उसके बाद उन्होंने क्या हासिल किया इस चीज से, तो क्या ऐसा कोई निज़ाम है वहां पे जिससे ये पता चले कि ये ट्रेनिंग जो है ये वाकई में कोई तब्दीली ला रही है? देखिए सर, पहले तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी. जब आप ये कहते हैं कि ये ट्रेनिंग्स जो हैं ये ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में हो, तो हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं ब्लेंडेड मोड में ही रहती हैं, ऑनलाइन भी रहती हैं, ऑफलाइन भी. लेकिन मेरा ये पर्सपेक्टिव है, मैं अपना ओपिनियन बताऊंगी आपको, कि जो ऑफलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव होती हैं. ताकि रीजन ये कि कनेक्शन इज देयर. आप जो मशीन पे सीखते हैं वो शायद इतना इफेक्टिव नहीं हो जितना आप मैन टू मैन कन्वर्स करके सीखते हैं. तो तात्पर्य से ह्यूमन टच हो, इमोशनल टच हो, सो टच हो वारिया जरूरी. असल कॉन्टेक्स्ट चूचान सर, वी नीड टू टॉक अबाउट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो. इट्स नॉट ऑल अबाउट कॉन्टेंट. कॉन्टेक्स्ट चूचून, तो वो कॉन्टेक्स्ट तब पता चलता है जब आपके समक्ष लोग बैठते हैं, आपके सामने वो होते हैं. यू अंडरस्टैंड देम, यू रीड देम. आई टोल्ड यू द टीचर हैज टू बी अ मैजिशियन, अ प्रैक्टिशनर. शी और ही when they're in the class reads the faces of the children, and same as with the trainings. The trainer knows what is to be given to the person who is there. तो ऑनलाइन में अब ये है कि each person का कि ऑनलाइन इसमें जो वक्त बचान अश्तिन ट्रेनिंग्स करान, जैसे कोई ऐसा मसला है, ठंड है और सम अदर वैगरी ऑफ नेचर, जब टीचर नहीं आ सकता, वी ट्राई कि टाइम बच जाए और ऑनलाइन वो करें. मगर तीन ट्रेनिंग आसान किस स्टफ के हैं, जहां पे ट्रेनिंग स्टफ होती है वहां पे हम ऑफलाइन का मोड प्रेफर करते हैं. ये तो जी, जैसे आप कह रही थी कि आप खुद बचपन में इंस्पायर हुई थी मैम से, तो एक इंटरेस्ट हुआ था केमिस्ट्री में और आगे जाके आपने मास्टर्स भी करा. तो डू यू थिंक अभी के जो टीचर्स हैं आप उनको इस तरीके से ट्रेन करें कि वो भी बच्चों को इंस्पायर करें, क्योंकि आजकल बहुत शिकायतें हैं इस हवाले से कि जो एजुकेशन है इट्स बीन मोर कमर्शलाइज्ड, सो वैल्यू बेस्ड, मॉरल बेस्ड, वो एजुकेशन थोड़ी मिस है, कहीं पे लिंक है, वो इंस्पिरेशन कहीं पे वो लिंक मिसिंग है. उस पर कैसे काम कर रहे हैं आप, उस पर काम कर रहे हैं? देखिए मैं आपको अपना ही बताऊं, टीचर इज ऑलवेज एन इंस्पिरेशन. टीचर कैन नेवर बी गुड और बैड. टीचर इज अ टीचर. एंड आई एम नॉट हियर टू ब्रांड एनीवन, बट द फैक्ट इज कि जब आप क्लास में जाते हैं, आप में वो जो बेसिकली टीचर है, यू नो देयर आर प्रेशर्स एंड पुल्स दैट मेक यू टीचर. ठीक है. एंड अगर आप टीचर रियली आप एक टीचर हैं बाय द डिंट ऑफ योर हार्ड वर्क, बाय दोज प्रेशर्स एंड पुल्स दैट हैव टॉट यू, और बाय योर इंटरेस्ट, तो बिलीव मी आप खुद ही अपने आप में एक इंस्पिरेशन है. आप खुद ही उनको इंस्पायर करते हैं. बच्चा आपको खुद ढूंढने आ जाता है. आप 2 दिन घर बैठिए, आई बेट तीसरे दिन बच्चा आपके पास आएगा और ये पूछेगा कि सर क्यों नहीं आए हैं. दिस इज हैपनिंग. अच्छा. You see, you have 100 teachers, all cannot be by choice.
मोस्ट बट ट्रस्ट मी, जब वो क्लास में जाते हैं वो तब्दीली खुद ब खुद आ जाती है। और आपने ये कहा कि आजकल कहते हैं कि कमर्शलाइजेशन इज देयर, सी हर एक चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, बिल्कुल। हर एक कहीं ना कहीं लूप होल्स होती हैं और हम उन लूप होल्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं। बट जब हम ये कहते हैं कि बच्चे तक क्या पहुंचता है, तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि एक टीचर जो क्लास में होता है वो बस टीचर है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। और उसका एक कनेक्शन जो है वो सिर्फ टीचिंग का बच्चे के साथ रहता है और वो अपने आप को उस बच्चे में देखता है। वो जो यू नो इफ आई एम देयर इन द क्लास और मैंने कुछ हासिल नहीं किया है, मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि वो आप हासिल करें। तो ये एक टीचर में इनबॉर्न है, ऊपर वाले का शुक्र है कि व्हेन द टीचर इज देयर इन द क्लास ही इज जस्ट अ टीचर, नथिंग मोर देन दैट, नथिंग लेस देन दैट। अच्छी बात आपने कही। और एक चीज और भी जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो SCERT है वहां पे आपके पास टीचर्स आते हैं और आप उनको ट्रेनिंग देते हैं। ये जो एक कनेक्ट होना चाहिए टीचर में, बच्चों में, स्कूलों में, ऑन मतलब ग्राउंड पे बच्चे क्या फेस कर रहे हैं, आप कुछ ऐसी ट्रेनिंग देंगे टीचर्स को जहां पे अभी बहुत सारे ऐसे हमारे स्कूल हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, जहां पे बारिशों में स्कूल बंद करना पड़ता है, जहां पे मतलब कुछ ऐसी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं जो फील्ड में बच्चा फेस करता है, टीचर फेस करता है। उसके बाद जब आपके ट्रेनिंग सेशंस होते हैं तो आपका अपना एक नजरिया है उन ट्रेनिंग्स के हवाले से। क्या SCERT ग्राउंड पे जाकर के पहले रिसर्च करता है कि आप फीडबैक ऐसे लेते हैं, जो टीचर्स आप कनेक्ट करते हैं या आप ऑनलाइन फीडबैक लेते हैं, इज देयर अ प्रोसेस जो SCERT को ग्राउंड पे लेके जाता है, जहां वो ग्राउंड पे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके, बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ मुख्तलिफ स्कूलों में, नॉट ओनली श्रीनगर एंड जम्मू जो मेट्रो सिटीज हैं उसके बाहर भी दूर दराज के गांव देहात में जाकर के पूछना, बच्चों को देखना कि हाँ जी ये मसला है, बाद में आप वापस आकर के मतलब मेरा कहने का ये है कि क्या हम सिर्फ ये ऑनलाइन लैपटॉप्स के जरिए ही अपने मॉड्यूल्स को बनाते हैं या ग्राउंड पे जाकर के हम सूरत हाल को देखते हैं? सर दिस इज SCERT। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जब हम कहते हैं एक्शन रिसर्च होता है तो डेफिनेटली इसमें कागजी होत क्या है, तो नेचुरल लैपटॉप चाहिए एक फिक्स्ड मैकेनिज्म है। वी डू गो टू द फील्ड्स, वी डू गो टू द स्कूल्स, वी डू टॉक टू चिल्ड्रन। और सिर्फ चिल्ड्रन की बात यहाँ नहीं है, SCERT has taken an initiative to talk to all the stakeholders, सारे स्टेक होल्डर्स। उसमें एक बस ड्राइवर से लेकर, इसमें बचस वॉच चुकरान, एक बस ड्राइवर से वो दुकानदार जिसे चिप्स खरीदता है वो भी स्टेक होल्डर है, वो आंटी जो इसका बैग स्कूल के अंदर ले आती है शी इज ऑल्सो स्टेक होल्डर। तो हम वहां से लेकर पेरेंट्स से लेकर उस स्टेक होल्डर तक बात करते हैं। अगर हमें कहीं पे लगे कि कोई कोताही है तो उस नतीजे तक पहुंचने के लिए टू डिजाइन एंड डिवाइस पॉलिसी हम क्या करते हैं, वी टॉक टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। और सर फील्ड में तो डेफिनेटली जाते हैं, तभी तो हमारा रिसर्च का काम कामयाब होता है। और वहां से फीडबैक लेके, बच्चे से इंटरेक्ट करके, पेरेंट्स से इंटरेक्ट करके, देन वी डिजाइन हाउ टू इरेडिकेट द इश्यूज। ओके, तो ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑपरेट्स एट द UT लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके क्या वर्टिकल्स हैं आपके, लाइक व्हाट आर योर उन तरीकों की जो डाइट्स वगैरह वो आपके it comes all under this SCERT only. Okay, we have diets. Okay, you have diets, districts वगैरह. Yeah. All districts have their diets. Okay, and all districts have diets. Diets have their aliens onto their control on the zones. Okay, और जो मेन अथॉरिटी है डाइट्स की वो है SCERT, जो उनके साथ कोलैबोरेट करके उनकी इच्छा के अनुसार ट्रेनिंग्स को हम डिजाइन करते हैं, उनसे भी फीडबैक लेते हैं। जो आर डूइंग द सेम थिंग सर, इट्स जस्ट अबाउट कि हम लोग थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखते हैं और डाइट्स का थोड़ा पर्सपेक्टिव उतना ब्रॉडर नहीं है, तो वो उस पर काम करते हैं। अदरवाइज गोल इज वन। थोड़ा रिफॉर्म इन एजुकेशन तक थोड़ी सी और जहमत देंगे आपको, अभी हमको एक और वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा, आखिरी वाला है। और इस वक्फे के उस पर आएंगे तो नाजरीन को जो मैंने इब्तिदा में कहा था, एक 2 नगमे होंगे आज प्रोग्राम में, आपसे गवाएंगे भी हम, एक नगमा भी गवाएंगे और थोड़ी सी एक जो बात है इस SCERT के हवाले से कुछ और बातें हैं जिनके बारे में बात करना बड़ा लाजमी है, ज़रूरी है। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। हम इस वक्त के फौरन बाद लौटेंगे और अंजलि जी से मजीद बात करेंगे। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में,
मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK के। आज जो हमारे खास मेहमान हैं अंजलि रैना, शी इज एन एजुकेशनिस्ट एंड अ टीचर ट्रेनर विद द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हम गुफ्तगू जो है सिलसिले कलाम है उनसे जारी रखेंगे। तो मैम मजीद हमें बताएं कि जो आप जैसे आप कह रहे थे कि हमारे जोन्स पे भी हैं, डिस्ट्रिक्ट्स पे भी हैं और जैसे यूटी लेवल पे आपकी ये बॉडी है, तो जब आप इन गोल्स को या इन ऑब्जेक्टिव्स को डिजाइन करते हैं, ये ऊपर से आते हैं कि ये डाउन द लाइन नीचे से बॉटम से आ जाते हैं डिजाइन वगैरह? देखिए, डिजाइन तो हम खुद ही फ्रेम करेंगे जैसा प्रॉब्लम होगा। इट्स नॉट कि कुछ आ जाए, रेडीमेड आ जाए। रेडीमेड वाला कुछ भी रेसिपी नहीं है। प्रॉब्लम आएगा, रिसर्च होगा, प्रॉब्लम आएगा और राइट्स विल इन्फॉर्म अस, ऐसा प्रॉब्लम है, वी गो एंड विल इन्वेस्टिगेट आवरसेल्व्स विद कंसर्न डिपार्टमेंट, वी हैव वेरियस डिपार्टमेंट्स है और उसके बाद ही उसके लिए दवाई भी बनेगी। ठीक, अभी तक आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से मर्ज हैं जो इस एजुकेशन सिस्टम में या जिनके लिए आपने कुछ प्रोग्राम्स? देखिए, सबसे बड़ा मर्ज ये था कि बहुत सारे लोग जो थे वो पढ़ाई से भागते थे। वी हैव अ नेशनल इनिशिएटिव उल्लास, ULLAS, एंड दिस इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हमने इस पे काम किया और सबने मिलके काम किया एंड वी आर हैप्पी कि आज जो अनपढ़ आदमी हमारे सामने आता है, सुशास बैंकस पर गसान तो पोंस कड़ा, सो पोंस कड़ी तुम पता लगा ATM क्या छो, या आई हैव सीन पीपल जो दवाई लेते हैं और दवाई को इस तरह से देखते हैं एंड आई आस्क देम चाच से क्या छो करा दवान जो बुछ सोचना एक्सपायरी डेट। आई रियली वेलकम इट, इट्स अ वेलकमिंग स्टेप। तो ये चीज, और आई सॉ अ लेडी, शी वाज वॉकिंग ऑन टू द रोड और गाड़ी रुकी और उसने उससे कहा कि मैं चुगा सुन बिमिन, तो उन्होंने शिना तक आ पा रही, अच्छा बिमिन लेके अच्छा बटमालून लेके। तो दूसरी लेडी आई तो उसने उसको कहा कि बटमालू छुनी छू गलत था, ये स्पेलिंग क्या छे लीच में, एंड इट वाज रियली शॉकिंग। तो उसने बटमालू लिखित की ही, तो उसने कुछ वर्ड्स लिखे थे B से, बट दैट वाज नॉट बटमालू। सो दिस इज समथिंग वेरी गुड कि पढ़े भारत बड़े भारत। तो ऑल आर एजुकेटिंग देमसेल्व्स और ऑल आर ब्लेस्टिंग देमसेल्व्स विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, तो ये बड़ी बात है। अच्छा अंजलि जी, एक बज़ चला है सोसाइटी में दैट जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही भेजना पड़ेगा। मैं मुखालफत नहीं कर रहा हूं, सरकारी स्कूल अच्छे हैं और मैं खुद सरकारी स्कूल का पढ़ा हूं, ठीक, तो मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन सरकारी स्कूल में मैंने पढ़ा है और बड़े अच्छे टीचर्स थे जिनसे वाकईतन जो जैसा कि आपने कहा कि इंस्पिरेशन मिलती है और अभी भी मुझे नक्श है उन टीचर्स की पढ़ाई का जो पढ़ाते थे मुझे ड्यूरिंग माई मिडिल क्लासेस। लेकिन देखा जा रहा है कि थोड़ी सी हिचकिचाहट है इस चीज में। क्या आपको लगता है कि स्कूल जो हमारे सरकारी स्कूल हैं वो इस चीज के लिए रेडी हैं कि जहां ओवरवेलमिंगली विलिंगली सरकारी मुलाजमीन जितने भी हैं, अब इसमें थोड़ा क्लास 4th एम्प्लॉय ही नहीं आएगा, इसमें सेक्रेटरी लेवल के बंदे भी आएंगे, जहां पे हिचकिचाहट होगी कि नहीं पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हम जब कंपैरिजन करते हैं सरकारी स्कूलों का और प्राइवेट स्कूलों का, तो डिसिप्लिन में, पढ़ाई में, बहुत सारी चीजों में बहुत आगे हैं प्राइवेट स्कूल्स। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये भी एक हकीकत है कि जो सरकारी स्कूल में टीचर्स हैं, ट्रेन है, जैसे आपने अभी कहा SCRT वगैरह की ऐसी ट्रेनिंग्स का, तो वहां पे स्टाफ इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, इतना ज्यादा ट्रेन नहीं है, बट व्हाट मेक्स देम यील्ड बेटर रिजल्ट्स। और क्या आपको लगता है कि ये सरकारी स्कूल जो मुलाजमीन हैं इनके बच्चों को सरकारी स्कूल में ला करके, आपको लगता है कि ये एक ऐसा स्टेप है जो आपको लगता है कि होना चाहिए? सिर्फ पर्सनल, और आप अपने बच्चों को भेजेंगे? सिर्फ पर्सनल व्यू, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन। जी आपसे पर्सनली जानते हैं। एक्चुअली आई डोंट वांट कि हो सकता है कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाएं, बट मैं आपको अपना पर्सनल व्यू दे रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये लाइन भी पढ़ी और जब मैंने ये फाइल का सुना भी। आई वुड बी द फर्स्ट लेडी, मैं चाहूंगी कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाए। गवर्नमेंट स्कूल में आपने खुद कहा सर क्रीम है, पढ़ाने वाले क्रीम है, बिल्कुल बिल्कुल। एक टेस्ट होता है बाज़ाबिता जिसको वो क्वालिफाई करके आ जाते हैं जी। ओके, तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्रीम है
और एक टीचर को मैं जानता हूं जिन्होंने MA इंग्लिश किया है, MSc केमिस्ट्री किया है और MBA किया है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती है ना? सर मैं आपको और एक की बात नहीं कह रहा हूं। और मैं आपको सर मोस्ट रिसेंटली मे बी समवेयर गॉड विलिंग दिसंबर में मुझे डॉक्टरेट डिग्री भी मिलेगा। इंशाल्लाह। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द कन्वोकेशन। फिर हम नेक्स्ट टाइम जो बुलाएंगे तो डॉक्टर इंजीनियर आएंगे। थैंक यू सो मच। तो मेरा ये कहना है कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि वहाँ क्लेम है, आप अपने बच्चों को वहां दाखिल करिए, चाहे वो मेरी तरह कोई छोटा एम्प्लॉय है या आपकी तरह कोई बड़ा एम्प्लॉय है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे भेजिए। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की सर, और आपने कहा कि प्राइवेट स्कूल में सब कुछ है, तो प्राइवेट स्कूल फ्री भी चार्ज कर रहे हैं ना, वो भी तो देखिए। गवर्नमेंट स्कूल तो फ्री एजुकेशन दे रहा है, वो भी आप देखिए। तो मुझे आपको कहीं नहीं लगता, कहीं ये नहीं लगता है कि वो फी भरने से या वो सब चीजें जब वो बर्डन पड़ता है पेरेंट्स पे, तो एक अकाउंटेबिलिटी भी आ जाती है उससे। जब सरकारी स्कूल में तालीम फ्री है, वर्दी फ्री है, किताबें फ्री हैं, तो वहाँ अकाउंटेबिलिटी उतनी ज्यादा। अकाउंटेबिलिटी की जब बात करते हैं तो यही तो प्रॉब्लम है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना अष्टवासा इतने से जरूर आपकी दर खर्च आए हुए इतनी जो सो रही के इशू जरूरी वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू ब्रेक द शैकल आल्सो, वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस ककून कि इशू जरूरी कि पैसा दे और सब कुछ हो गया। इट्स नॉट अबाउट दैट, यू नीड टू बी क्वाइट एक्वाइंटेड विद द थिंग्स दैट आर चेंजिंग। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आप पुराने वक्त में चले जाइए, गुरुकुल वाज देयर, कौन बड़े बड़े बिल्डिंग एसी लेगित तैतीस ने एसी के सर अस्तु स्टाप क्राइम्स पुरमुत टू बी ऑनेस्ट इनफ विद यू आई हैव सीन ऑल द स्ट्रगल व्हेन आई लेफ्ट दिस वैली, तो अस्तु स्टाप क्राइम्स पुरमुत but porna which is sorry sir, this is just a bent of mind and I request parents keep them switching up bit. Private schools may be having a good infrastructure, but if they really want the cream to teach them, they should prefer गवर्नमेंट स्कूल। So, क्या गवर्नमेंट इदारे, इट्स अ गुड थिंग, यू नो, अगर बच्चे जाते हैं सरकारी इदारों में, लाइक हमारे पास एक पायलट टेस्ट है एक यूटी का और नियरेस्ट यूटी, उन्होंने काफी इस हवाले से एजुकेशन में गवर्नमेंट स्कूल्स में रिवोल्यूशनाइज करा। आर द गवर्नमेंट स्कूल्स रेडी, अगर ऐसा प्रपोजल थ्रू हो जाता है और तमाम वालिदैन अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाते हैं, क्या आप तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि ये पूरा सिस्टम, ये स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये तैयार है पूरे इनटेक करने के लिए और फिर बच्चों को वो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए? ऑब्वियसली देयर आर बेस्ट ब्रेन्स देयर, बट बहुत सारी और चीजें हैं, क्या वो सब चीजें तैयार हैं? आर दे रेडी? सर क्वालिटी देने के लिए नहीं, हम क्वालिटी दे रहे हैं, बिल्कुल, पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि वी आर अलाउड टू हैव दोज चिल्ड्रन विद अस। और मैं आपको ये भी बता दूं सर कि गवर्नमेंट स्कूल में अभी जो प्रोडक्ट आजकल निकल रहा है उनके रिजल्ट्स भी स्पार्कलिंग होते हैं। इसलिए द गवर्नमेंट हायर सेकेंडरीज पोजीशन ज्यादातर वही लेते हैं। सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ बीइंग देयर इन द क्लास विद AC ऑन एंड ऑल, नो। मैं ये भी मानती हूँ, मैं इस हवाले से ये भी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चे से बच्चे प्रेशर से क्विज दें, तभी तो निखरता है। टफ टाइम्स में यस या डायमंड को जब तक हम यू नो प्रेशर में बढ़ाएंगे तब तक वो भी कन्वर्ट नहीं होगा। पैम्पर्ड बनाया है अभी बच्चों आप बच्चों को इतना पैम्पर्ड मत बनाइए, आप बच्चों को उस चीज में डालिए जिससे उसे डर लग रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दीजिए। मैं इस पोडियम से बोल रही हूँ सर, इट वोंट बी अ रिग्रेटफुल डिसीजन। तो क्या चीज होगी कि लोग इस डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे? मतलब व्हाट्स द ट्रिगर कि लोग कहें कि हाँ हम भी सबसे बड़ा ट्रिगर है मैं अपने बच्चे को पहले एडमिशन अच्छा, तो पहले बात जब मैं अपने बच्चे को दूंगी एडमिशन तो ऑब्वियसली अदर्स शुड फॉलो इट। अंजलि जी, जो ये ट्रेनिंग सभी चल रही है SCRT में जो मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं, तो अगर हम SCRT श्रीनगर की बात करें जहाँ के साथ आप मुंसलिक हैं, तो एट एन एवरेज एक हफ्ते में या एक महीने में या एक साल में how many teachers are being trained at your center? Sir, we do believe, जहां तक मुझे लगता है हम तो ट्रेनिंग की जहां तक बात आती है ऑफलाइन और ऑनलाइन थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स की ट्रेनिंग होती है। हाँ बिल्कुल होती है, ऑफलाइन ऑनलाइन, डिजाइनिंग ऑफ मॉड्यूल्स, कंटेंट डेवलपमेंट, HPC, द होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, एंड अदर देन दैट ऑल्सो NEP 2020 has it has made us to think about and ponder over so many things, और इस पे काम बहुत हो रहा है। मैं आपको रियली बताऊं सर, मैं यहाँ से भी शुक्रिया कर रही हूँ हमारे डायरेक्टर साहब का, मिस्टर मनहास, जिन्होंने हमें बहुत ही ज्यादा ओपन हैंड दिया हुआ है कि हम बच्चों के साथ डेफिनेटली कनेक्टेड रहें
और हमारे वहाँ पे स्टाफ भी इतना अच्छा है सर दैट वी कनेक्ट टू वन अनदर. सबसे पहली बात तो वही है. और हम लोग पहले अपने आप को मुतमईन करते हैं कि क्या ये चीज हमारे लिए अच्छी है, एंड देन वी गो टू द मार्केट एंड ट्राई टू गिव इट टू द चिल्ड्रन हु रियली नीड इट. मुन्ना साहब के पास अभी SCERT का भी चार्ज है और गालबन बोर्ड का भी बोर्ड भी वही देखते हैं, स्टेट बोर्ड जो है. तो जी इज एन एक्सीलेंट हेड एंड अंडर हिज कॉमरेडशिप आई बिलीव कि SCERT काफी तरक्की कर रहा है इंशाल्लाह. और प्रोग्राम अपने आखिरी मराहिल में है, मेरे ख्याल से कुछ ही मिनट हैं और अब जरूरी है कि हम दरखास्त नहीं करें. सर मैं 2 लाइनें जरूर गाऊंगी. आप कह रहे हैं तो मैं ना भी नहीं करूंगी. हम गुजारिश कर रहे हैं. नहीं सर आप गुजारिश मत करिए, मैं तब भी अपनी लैंग्वेज में जरूर 2 लाइनें गाऊंगी. सर मैं जो ये गा रही हूँ आप प्लीज इसको कनेक्ट कीजिएगा बच्चों के साथ. मैं ये क्या बोलना चाह रही हूँ. जी जी प्लीज. रंग रंग थोरे नहीं क्रालन बानी दोन दोन कोरे नख नकुश. रंग रंग थोरे नहीं क्रालन बानी दोन दोन कोरे नख नकुश. केहे द्राय हली कई केहे जाना नहीं छालिंदा नहीं पो. केहे द्राय हली कई केहे जाना नहीं छालिंदा नहीं पोश. यहाँ कर से पोश दसवा नहीं छालिंदा नहीं पोश. सो सर चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन. कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे, लेकिन वो बेसिकली बुरे नहीं है, वो हमें लगता है और हमें उनको शेप करना है. उनकी जो वो कुशलता है वो उसको पहले भांपने की जरूरत है, फिर निखारने की जरूरत है, संवारने की जरूरत है. हर बच्चा प्रेशियस है. तारे जमीन पे हमारे सामने एक बड़ी जबरदस्त मूवी है आमिर खान की, वो जबरदस्त मूवी थी. सर चौक और डस्टर भी प्लीज देखिएगा, उसमें भी आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट का थोड़ा आइडिया होता है. It's also fantastic movie about teachers. और मुझे लगता है कि प्रोग्राम के आखिरी मराहिल में हम हैं और एक 30 सेकंड का, 40 सेकंड का, 45 सेकंड का अगर आपसे एक मैसेज, जस्ट एक जनरल मैसेज फॉर किड्स, फॉर देयर पेरेंट्स, फॉर टीचर्स ओवरऑल. Sir, I have a general message that kids are kids. Let them remain kids only. Let's not think of making scientists out of them. Let's not kill their interests. और जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, उनको सीखना पड़ेगा. हमें बुरा लगता है लेकिन हमें उस पर चेक भी रखना पड़ेगा. बट ये भी देखना पड़ेगा कि अच्छी चीजें कौन सी उनमें जा रही हैं, क्योंकि हर एक चीज के प्लस भी हैं माइनस भी हैं. तो एज अ मदर भी मैं यही कहूंगी, इस करो पानस कंट्रोल मोबाइलन पतवनो बचस्त. मगर टीचरन च मैं गुजारिश इत पटे कि ऐस यूजन आक स्टीरियोटाइप बनियो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट का. आई नो आई एम अ प्राउड गवर्नमेंट टीचर. मैं यहाँ से सर बोल रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी. और मैं गवर्नमेंट स्कूल्स को बहुत पसंद भी करती हूँ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यो छुनसोरी. और इस पोडियम से मैं जितने भी बच्चे जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं उन्हें ये कहूंगी, उनके पेरेंट्स को भी ये मैसेज दूंगी, प्लीज ट्राई गवर्नमेंट स्कूल्स ऑल्सो, बिकॉज इफ यू रियली वांट दैट द टीचर्स द क्रीम शुड टीच योर चिल्ड्रन, कम टू गवर्नमेंट स्कूल्स. बहुत अच्छी मैसेज. और आप कहते हैं ना कि हर अच्छे नेक काम की, हर बड़े काम की, हर खास काम की शुरुआत अपने आप घर से करनी चाहिए. एंड यू आर रेडी टू एनरोल योर वार्ड इन गवर्नमेंट स्कूल. आई विल सेकंड यू. मैं भी बिल्कुल राजी हूँ उस चीज़ के लिए. बल्कि मैं इस साल मेरी बच्ची मैट्रिक कर रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से वो सरकारी स्कूल में पढ़ेगी. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बड़ी खूबसूरत बातें हुई, अच्छी बातें हुई. और आपसे इजाजत लेंगे इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम डॉक्टर अंजलि रैना के साथ एक और मुलाकात करेंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जेएन के. आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. और नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. 1 घंटा आप हमारे साथ बने रहे. हर सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक पेश होता है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएन के. आज की नशस्त से दीजिए मुझे और माजिदुल खैर नंदा को इजाजत. अल्लाह हाफिज.